ایک ایسے حدیث کی دعوت دیتا ہوں جنہیں آپ میں دعوت کا سوال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زبان و بیان میں اسی مہارت کرتے ہیں کہ پوری دیر کی گفتگو میں سامنے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس میں میری مراد خطیب باکمال مقرر بے مثال حضرت مولانا مفتی عارف القاسمی صاحب، استاد داؤد امام صاحب، میں حضرت سے شیخ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب جمع ہو چکے ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ موسم تشریف لائے اور یوم جمہوریہ کے بارے میں کچھ گفتگو دے کر ہم سامعین کی ضرورت کو استعمال۔ الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العلي العظيم۔ محترم تشریف فرما اس جلسے میں جلوہ افروز حضرات اور اس مدرسے کے اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ یہی ہے عبادت، وہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ محترم سامعین حضرات، آج کا دن یوم جمہوریہ کا ہے، ہم حضرات جانتے ہیں اور کچھ باتیں ہو گئی بھی ہیں۔ آج کا دن ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے کا دن۔ آج کا وہ دن ہے شاہ اسماعیل عید رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے کا دن۔ آج کا دن قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے کا دن۔ آج کا وہ دن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا وہ دن عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا وہ دن محمود حسن دیوبندی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا وہ دن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا وہ دن گاندھی جی کو یاد کرنے کا دن ہے، اور آج کا وہ دن بھیم راؤ امبیڈکر کو بھی یاد کرنے کا دن ہے، کیونکہ ان حضرات کی قربانیوں کی وجہ سے اس ہندوستان کے اندر آج یہ ہرے بھرے تمام رونق ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور محمود حسن دیوبندی اس تحریک کی وجہ سے مالٹا کے جیل کے اندر قید ہوئے تھے، اور یہاں کی سردی کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے محمود حسن دیوبندی انتقال بھی فرمائے تھے، اور اس تحریک کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس سے پہلے فتویٰ نکالے تھے، جس کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی سزائیں بھگتنی پڑی۔ تمام جائیداد ان کے کرخ کر لیے گئے تھے اور ان کو طرح طرح کی سزائیں دیے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جب کہ اس ہندوستان کے اندر انگریز آ کر کے قبضہ کر لیا تھا اور اتنی طاقتیں ہو گئی تھی، تب یہ اعلان برسر عام کر لیا تھا کہ آپ مخلوق تو خدا کی ہیں، لیکن مخلوق خدا کی ہونے کے بعد یہ دیش بادشاہ بہادر کا ہے اور حکومت کمپانی بہادری کا ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تھا تو علماء کرام نے یہ محسوس کیا اب تو دین کہاں بچا، یہ تو دارالحرب ہو گیا، یعنی کافروں کا راشٹر ہو گیا۔ جب یہ احساس ہوا تو سب سے پہلے فتویٰ نکالا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کو سزا بھگتنی پڑی۔ آج افسوس ہے
کہ جس दारुल हर्ब को मिटाने के लिए और दारुल इस्लाम को लाने के लिए उलमाए किराम ने एक के बाद दीगर जहादे और जंगे किए हैं, और उलमाए किराम बेशुमार और मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई भी, लेकिन मुसलमान ज़्यादा थे, उलमाए किराम ज़्यादा थे, अपने खून को इस ज़मीन के अंदर बहाए थे और फिर इस दारुल हर्ब के नाम को यहाँ से हटाना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी आज ऐसा दौर इस वक्त हमारे सामने है कि इस देश को दारुल हर्ब ही कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम के अंदर किताब के बताते हैं कि दारू दारान के दार यानी वतन दो किस्म के हैं, एक है दारुल इस्लाम और एक है दारुल हर्ब। तो दारुल इस्लाम जहाँ इस्लामी हुकूमत चलती है, जैसा कि सऊदीया है, लेकिन इसके बाद जैसे हमारे ये देश है, ये मुल्क है, ये दारुल हर्ब है, क्योंकि बाज़ कहते हैं कि ये दारुल अमन है, और किताब के एतबार से, फतवा के एतबार से दारुल अमन कोई दार नहीं है। उसी वजह से ये जो दो किस्में हैं, दारुल इस्लाम या दारुल हर्ब, दोनों में से एक को करार देना पड़ेगा। तो लास्ट में फतवा इसी पर हुआ है कि ये दारुल हर्ब है, यानी काफिरों का राष्ट्र है। उसी वजह से तो आप जाकर कोई झूठ बोलता है तो फिर उस पर 80 कूड़े नहीं लगाया जाता, कोई जाकर के गैर शादीशुदा जीना कर लेता है उस पर 100 कूड़ा नहीं लगाया जाता, कोई जीना कर लेता है शादीशुदा तो उस पर ये संसार नहीं किया जाता, क्योंकि ये दारुल हर्ब है। इसी वजह से इस्लामी और तमाम हुक्म लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी ऐसे आज़ाद नहीं है, जैसे कि शराब को शरबत समझते हुए बेचे और सुअरों को ऐसे बकरी समझते हुए बेचे, वो नहीं है। उसके अंदर पाबंदी है, जहाँ तक हो सके उस पर अमल होता है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज तक हमारा मुल्क दारुल हर्ब रह गया, जिसकी वजह से उलमाए किराम ने उसकी कुर्बानियाँ दिए थे। फिर भी उस देश के कानून जब बने थे, वही आज ही का दिन था कि इस देश के अंदर कानून बनने के बाद लागू किया गया था। उसी वजह से हम आज के दिन को 26 जनवरी को ये जश्न मनाते हैं कि 7 आदमी को ये जिम्मेदारी दी गई थी जब मुल्क आज़ाद हो गया था कि आप हजरात जाकर के कानून बनाए कि ये देश किस तरह चले। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन तकरीबन 3 साल से उन्होंने जाकर के एक दस्तूरनामा तय किया है कि इस मुल्क को ऐसे ही चलेगा। लेकिन बदबख्ती ये है कि जब इंग्रेज इस मुल्क से भागने लगा तो देखा है कि हमारी दुश्मनी तो शुरू ही उनसे हुआ है, उलमाए किराम और मुसलमान से। उसी वजह से उनके जो हमारी जो बिरादरी है दूसरी, उनको जाकर के अपने हाथ के अंदर ले लिया और कहा कि उनको जाकर के मुल्क देखे जाता हो। उसी वजह से जिन्ना को खड़ा कर दिया और उन्होंने जाकर के ऐलान लगाया हमको इस्लामी मुल्क चाहिए, हमको पाकिस्तान चाहिए। वो जाकर के पाकिस्तान के अंदर चला गया और जो उनके हम ख्याल थे वो भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। बाद में बांग्लादेश भी बांग्ला के नाम पर वो भी अलग हो गया, अब छोटा सा एक मुल्क रह गया। लेकिन फिर भी उसको उपमहादेश कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश के सबसे पहला जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे जवाहिरलाल नेहरू। जब जवाहिरलाल नेहरू गए थे अरब के अंदर, सऊदी में सफर के अंदर, तब जाकर के यहाँ के कानून के बारे में बातचीत हुई वो सऊदी के। तो बताया कि आपके यहाँ के ये जालिमाना कानून मुझे समझ में नहीं आता है कि यहाँ तो आदमी कोई किसी को मारे तो दूसरे को सरे से मार दिया जाता है, ये किसास है। बताया कि से जाकर के तो आदमी की जानें बचती है, क्योंकि आपके मुल्क में आप जब से उसकी जिम्मेदारी को हाथ के अंदर लिए है तो बताइए कितनी कातले और कितने मारे हुए हैं, तो वो जाकर के बता नहीं पाए। लेकिन बताया है कि हमारे मुल्क के अंदर गिने चुने इतने हुए हैं। और फिर किसास हयातुन या उलिल अलबाब के किसास के अंदर बदला लेने में लोगों की जिंदगी है। उसी वजह से अक्ल वाले वही समझते हैं कुरान करीम के अंदर है। तो इस वक्त क्या हुआ था, उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मुख्तलिफ दस्ताने तैयार किए गए थे। लेकिन एक शायर ने आकर के ये अरबी जबान में पढ़ा था कि अहातल बहरू अतल हिंदू, ये नेहरू बताए थे कि अहातल बहरू नेहरू, यानी ये हिंदुस्तान एक देश है जो बहुत बड़ा मुल्क है और ये मुल्क जाकर के एक दरिया है और उसको घेर के रखा है एक छोटा सा नहर ने।
नहर यानी उसका नाम नेहरू था, तो उसी वजह से इसकी नाम की मुनासबत से उसने ये शेर के अंदर ऐसा अल्फाज लाए थे। तो इसी वजह से अब भी उसको महादेश कहा जाता है, उससे दूर हिस्से टुकड़े होने के बाद, लेकिन फिर भी ये मुल्क आज उस ताकत के अंदर है। और उस वक्त जाकर के उन्होंने चाहा था, जब पाकिस्तान अलग करके ले गए थे, तो हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही रहेंगे और यहाँ कानून हिंदू का बनेगा। लेकिन उलमा किराम और बाकी जो रहने वाले थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाकर के कुर्बानी दिए थे और हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, रहने के लिए कुर्बानी दिए थे। उस मुल्क के अंदर कानून ऐसा बनेगा कि मुसलमान और काफिर जो भी होगा तमाम अपने हक बराबर लेकर के रहेगा, ऐसा कानून बनेगा। और उन्होंने ऐसे दबाव डाला, मजबूर हुए हैं। और फिर ये रुकनी कमेटी जो 7 आदमी के ये तश्कील की गई है, और उनके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे और भीमराव अंबेडकर उसका जिम्मेदार थे। और उन्होंने जाकर के तकरीबन ये 3 साल टाइम के जरिया एक दस्तूरनामा कायम किया है, ताकि उस दस्तूरनामे के मुताबिक ये हिंदुस्तान चले। और इसको उन्होंने लिखने के बाद मुख्तलिफ जलसों में उसके हर एक जूज पर परखा गया है कि ये देश के लिए मुआफिक है या मुखालिफ है। परखने के बाद आखिर जब ये पास हो गया है, दस्तखत वगैरह किए हैं, तो फिर 26 जनवरी आज के दिन उसको चालू किया है। लेकिन फिर भी अफसोस है कि उस दस्तूर का आज जाकर के मजाक उड़ाया जा रहा है और ये नंगी नाच नाचे जा रहे हैं। लेकिन कुरान बदलना चाहते हैं, इस्लाम बदलना चाहते हैं, मुसलमानों को बदलना चाहते हैं, उनके रंग को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बदलने का नहीं है। सबसे पहले उस मदरसे के पढ़े हुए ये तलेबा अबुल कलाम आज़ाद उस मुल्क के शिक्षा मंत्री बने थे और आज भी इदारा कायम है। उसी वजह से 1866 के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि ने देवबंद के अंदर ये मदरसे बनाए थे कि उलमा किराम देश प्रेमी लोग तो खत्म हो रहे हैं, अब जाकर के उलमा को कायम करना है। और जो मर गए हैं उनके बच्चों को खींच करके मदरसे के अंदर लाकर यहाँ पढ़ाना शुरू किया है। और यहाँ के बाद ये पूरी दुनिया के अंदर जितने मदारिस है उस मदरसे के शाखे हैं, अंदर ये जितने भमरे हैं और जितने जाकर के उसके ये फानूसे हैं, वो तमाम जाकर के आप उस मैदान के लिए तैयार किया जा रहा है कि अगर दस्तूर को बदलना चाहे तो हम लोग भी आप खड़े हो रहे हैं और उनको तैयार भी किया जा रहा है। और उस दस्तूर के मुताबिक अभी ये तमाम मुख्तलिफ जगहों में ये मदरसा चल रहा है कि लोगों से चंदा मांगा जाए और ये उनकी जिम्मेदारी समझाया जाए और वही मदरसे को चलाए, और यहाँ जाकर यहाँ से निकलेगा वो उनकी जिम्मेदारी को अदा करेगा। देश के लिए, दीन और मिल्लत के लिए जब भी उनको पुकारा जाए वो जाकर के अब ऐसे नहीं है, बल्कि उनके पहले वालों ने इस तरह की कुर्बानी दे करके उसको दिखाए हैं। उसी वजह से ये तमाम ये मंजरे हैं और तमाम हमारे सामने हैं। आप जाकर के तकरीरें तो बहुत करनी थी, उनमें से आप बात को मैं शर्ट करके लाता हूँ, 2-3 बात आप इसके बारे में कहता हो, इसके बाद हो जाए हम कर देंगे। बात ये है कि एक हदीस हम सुनते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। आप तमाम तलेबा भी सुन के रखें, आइंदा ज़माने आप तमाम सुनेंगे भी। ये कोई हदीस नहीं है, ये कोई हदीस नहीं है। बताते हैं वतन की मोहब्बत ये ईमान के जुज ऐसे नहीं बन सकता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बताया भी नहीं। हाँ, मोहब्बत रखिए, उसके साथ रहिए, उसकी वफादारी करिए, लेकिन ये ईमान के एकदम के जूस ये नहीं। और ये हदीस नहीं, ये बताते हैं ये मौजू हदीस है। उसी वजह से बहुत सारे ये तो हदीस कह करके पढ़ लेता है, तो सुन के रखे कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, ये हदीस नहीं है, ये किसी का माकुला है। ऐसे ही हम तलबे इल्म एक ये सुनते हैं कि उतलुबुल इल्मा वला काना फिस्सीन, ये भी हदीस नहीं है। ये सब जाकर के मौजू हदीसें हैं, माकुला है। बाद आदमी इसको हदीस समझ करके हदीस अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब करके पढ़ता है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो जाकर के मेरी तरफ झूठ कोई बात मंसूब करेगा फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, तो वो जाकर के अपना ठिकाना जहन्नम को बना ले। उसी वजह से बहुत एहतियात की जरूरत है। और उसके बाद आप ये समझे कि जो ये तराना पढ़ा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अब इस पर भी एतराज हो सकता है। तालिबा इल्म को जानना होगा, आगे जिंदगी में तुमको काम है कि अब मक्का है, मदीना है, बहुत फजीलत वाली चीजें हैं। हम यहाँ जाकर के यहाँ से सफर करके इतने पैसा खर्च करके यहाँ जाकर के हम नमाज पढ़ने में इतना स्वाब, और इसको तय करने से सफर करने में इस तरह के स्वाब हैं। मक्का मदीना तो दुनिया के अंदर सबसे
अच्छी जगह है। अब बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल वो भी दीनदार आदमी थे, उन्होंने दीनदारी के बारे में बहुत सारे अशार पढ़े हैं। उनके शेर पढ़ने के बाद ईमानी जज्बात तो भड़क के उठ जाता है। लेकिन उन्होंने कैसे बताया कि सारे जहां से अच्छा मक्का मदीना को कैसे छूट दिया। बता रहे हैं कि अल्लामा इकबाल के तमाम अशार देखने के बाद ये नहीं समझा जाता है कि उन्होंने ये ख्याल करके रखा है कि मक्का मदीना से ये बेहतर समझ करके लगा, बल्कि मतलब ये है कि उन्होंने दूसरी जहाद के एतबार से बताया, हर एतबार से नहीं बताया, बल्कि मक्का मदीना तो फजीलत के एतबार से हैं। और जैसे हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा ये बताया कि यहाँ हिंदू भी और मुसलमान भी अपने कानून, अपने मजहब, अपने मदारिस, अपने मंदिरें सब लेकर के रहते हैं। उस तर्ज तरीका है, ये तरीका किसी जगह नहीं है। ये गंगा जमुना तहजीब ये हिंदुस्तान ही के अंदर है। इस एतबार से कहा कि सारे जहां से अच्छा, फजीलत के एतबार से नहीं, फजीलत तो ये मक्का मदीना के अंदर है। वहां जाकर के 1 लाख रकात की नमाज का सवाब पाओगे और फिर 1000 के सवाब पाओगे। ये जाकर के ये तो है, ये तो इसका ये एक दूसरा जवाब ये बताए हैं कि या तो उसने मक्का मदीना छोड़ करके बाकी जितने ममालिक हैं, जितनी जगहें हैं, उनको शुमार करके अपने दिमाग के अंदर ला करके बताया कि मक्का मदीना छोड़ करके ये तमाम है। इस तरह के लिखे हैं, मैं जा करके पढ़ करके तुमको ये जवाब बताता हूँ, मैं अपनी जानिब से ख्याल से बता नहीं रहा। उसी वजह से ये जा करके हम ना समझे कि उन्होंने ये कुफरी कर दिया है या उसके अंदर कोई फतवाबाजी ना करे। चले, उनका मतलब ठीक है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, ये गुलिस्तान हमारा। और ये जाकर के ये जो परचम लहराया गया है उससे ऊपर वाला, यानी उससे जाकर के रेड तुमको दिखाया जाता है कि इस देश को आज़ाद करने के लिए जद्दोजहद किए हैं, कुर्बानियाँ दिए हैं, खूने बहाए हैं। और फिर जाकर के सफ़ीद निशानी से मतलब ये है कि उसके अंदर आज़ादी और कामयाबी मिली है। और उसके बाद ये हरे से मतलब ये है कि बड़े बड़े ये हिंदुस्तान मौजूद है, सब जाकर के मुख्तलिफ अक़वाम के लोग अपने अपने मजहब के एतबार से इत्मीनान चैन सुकून से है। लेकिन जो उसके गद्दार होते हैं उनसे ये परचम को उल्टा लहराना आ जाता है, जाकर के लाल वाले हिस्से को नीचे देता है और हरे हरे ऊपर दे देता है, क्योंकि वह जाकर के इस हिंदुस्तान के अंदर फिर भी ऐसे उनको बहाना चाहते हैं। उसी वजह से ये हो रहा है। ये जाकर के हिंदुस्तान की खूबी है तमाम देशों पर कि यहाँ मुसलमान भी अपने मजहब के एतबार से पूरा जाकर के मजबूती के साथ और हिंदू भी अपने मजहब के अंदर पूरा मजबूती के साथ ये जाकर के गंगा जमुना तहजीब वाला ये मुल्क है। बातें तो ये जाकर के सबसे पहले मैं एक आयत पढ़ा था, बल अहियाउ वला किल्ला तशुर, जितने शहीदें हुए हमारे अकाबिरीन मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये भी फतवा दिए हैं कि जाकर जब कांग्रेस निकले हैं तो 1885 के अंदर बताया है कांग्रेस निकले हैं तो कांग्रेस के अंदर जुड़ जाओ और फिर जाकर के उनका ख्याल भी ऐसा ही हम आज़ाद करना है और फिर आज़ाद उनको साथ लेकर के करो। और ऐसा ही हुआ और बाद में देश आज़ादी हो गया है उनको जब साथ के लेके गया था। और ना इससे पहले तो बहुत सारे जंग जहाद किए हैं उलमाए किराम ने, अकेला उसके अंदर कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन ये तमाम उनकी कुर्बानी है, ये तमाम शहीद हैं। कुरान शरीफ के अंदर बता रहे हैं कि ये तमाम जिंदा है, तुम समझते हो ये मर गए हैं, ये मरे नहीं हैं, अभी तो वो जिंदा है। को हम यहाँ आज भी याद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इस देश और इस मुल्क के वफादार बना करके रखे और हम तमाम के लिए जो शहीदें हुए हैं अल्लाह ताला उनको कब्रों के अंदर करोड़ करोड़ चैन सुकून आफियत राहत नसीब फरमाए, आमीन। और आखिर में ये 2-3 शेर पढ़ ले। शेर तो हमारे लिए शिरीनी लगता है कि सरफरोशी की अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ूर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जुआ बाजुए कातिल में है। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की उस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के इकाम है इंसान दुनिया में इंसान के इंसान। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।